So hello friends, welcome to Mac Forum. Now today we will derive an equation which is called as an Reynolds transport equation. Now what is Reynolds transport equation? It deals with the transport phenomena of a mass or any property within the system or the control volume. Now we will first proceed to derive the equation, then we will see exact what the Reynolds transport theorem is. Now first we want to proceed for deriving the equation. We have to select or define a extensive property, that is mass, momentum, volume and the energy, and we are denoting that extensive property as a B. This is just a general notification. We are defining is any property which is an extensive property by B. Means if we say that B equals to MB, this is an extensive property, and small b we are defining it as an intensive property. If the extensive property is divided by a mass, it becomes an intensive property. So B is an intensive property and capital B is an extensive property. Now we have to define how much amount of this B is present in a system. So if you want to find a total amount of B in a system, we have to use an integral within the control volume of a intensive property, and this dense rho is a term of a mass. If you multiply rho with the intensity property B, and if we integrate over the control volume, you will get the total amount of B or an extensive property which is present in the system. Now this much part just you leave it. Now we will start with the actual concept. Now if you see this kind of triangle or a trapezium type, this blue line, dotted line indicates your system and the black one indicates your control volume. Now this is the condition at the initial time. Means at the start of this time, at t0 time, this system and the control volume both overlaps. अभी तक हमने एक इनिशियल टाइम है, जैसे कि आप स्टेशन है और प्लेटफॉर्म है, दोनों जगह पे खड़े हैं, तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम जीरो है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म क्या है, दोनों एक ही साथ कोइंसाइड है. सेम योर सिस्टम एंड द कंट्रोल वॉल्यूम बोथ ओवरलैप्स. नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, आपका प्लेटफॉर्म पीछे रह जाता है और ट्रेन थोड़ी आगे निकल जाती है. मीन्स व्हाट, ट्रेन का जो इंजन है वो प्लेटफॉर्म के बाहर होगा और जो पीछे थोड़ा प्लेटफॉर्म बाहर हो जाएगा, ट्रेन थोड़ी आपके अंदर है. ट्रेन पार्शियली इन होगी प्लेटफॉर्म के और पार्शियली आउट होगी प्लेटफॉर्म के. आफ्टर सर्टेन टाइम ट्रेन स्टार्ट हो गया, आपको 15 सेकंड्स हो गया है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल सी दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अ ट्रेन, दिस इज द इंजन एंड दिस इज द गार्ड बोगी. तो सर्टेन पार्ट आउट होगा, सर्टेन पार्ट आपका इन होगा, बट आपका प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, जगह पे ही रहेगा सेम. दिस इज योर सिस्टम विल रिमेन्स एट ए प्लेस आफ्टर सर्टेन टाइम. अगर आपका कंट्रोल वॉल्यूम शिफ्ट होता है, कंट्रोल वॉल्यूम क्या एक फ्लूइड का रीजन है जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ी बाहर आ जाएगी जस्ट लाइक दिस केस. सो देयर विल बी ए न्यू मास विच एंटर्स इनटू ए सिस्टम. यहाँ पे एक नया मास एंटर हो जाएगा. सपोज यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म है, तो नया प्लेटफॉर्म आपके ट्रेन के अंदर एंटर हो जाएगा. सिमिलरली दिस इज द रीजन विच लीव्स द कंट्रोल वॉल्यूम, जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम था उसके बाहर आ गया, लाइक दिस कंडीशन. So this is the mass, new mass which enters into the control volume. पहले ये दोनों, ये यहाँ तक था बट ये यहाँ चला गया है. This is the mass which left the control volume. Clear? Now we have to find out the change in a system with respect to time. Means rate of change of system निकालना है हमें. रेट ऑफ चेंज जब निकालना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल. किसी भी चीज का अगर आप पढ़ा, आपने एप्टीट्यूड के लिए पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू. रेट ऑफ चेंज मींस व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. मींस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. तो फाइनल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन क्या है, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम दोनों क्या है, कोइंसाइड.
मीन्स जो प्रॉपर्टी सिस्टम की होगी सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, बी कंट्रोल वॉल्यूम का होगा। मीन्स बी ऑफ सिस्टम at time t equals to b of control volume at time t. Now after certain time condition क्या होगी ये now b of system at time t plus delta t। सिस्टम क्या है आपका, दिस ब्लू लाइन, t plus delta t के बाद ये सिस्टम का क्या हाल हो गया है। मीन्स इतना ही पार्ट बचा आपके पास, हाँ इतना ही पार्ट बचा है आपके पास। मीन्स दिस कंट्रोल वॉल्यूम में से अगर पार्ट 1 माइनस कर दोगे बचेगा ये पार्ट, प्लस पार्ट 2 ऐड कर दोगे तो आपको ये पूरा पार्ट मिलेगा आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t। सो b ऑफ सिस्टम एट टाइम t प्लस डेल्टा t व्हाट, b ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम माइनस दिस सेक्शन माइनस फर्स्ट सेक्शन प्लस द सेकंड सेक्शन। सो यू विल गेट b ऑफ सिस्टम मीन्स टोटल प्रॉपर्टी ऑफ b आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए प्रॉपर्टी। मीन्स b का हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज। मीन्स व्हाट, डेल्टा मीन्स रेट ऑफ बाय dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ b ऑफ सिस्टम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल मीन्स b ऑफ सिस्टम t प्लस डेल्टा t माइनस b ऑफ सिस्टम ऑफ t डिवाइड बाय dt। क्लियर, ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। सो फॉर फाइंडिंग दिस वी आर टेकिंग द लिमिट dt tends to 0 on both the side. First we will substitute the value of this thing. फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या मिलेगा आपको, b, ये क्या था, b ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम t प्लस डी टी, क्लियर, माइनस क्या था आपका, b ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ t और क्या था आपका माइनस b ऑफ फर्स्ट रीजन t प्लस डी टी प्लस b ऑफ सेकेंड रीजन t प्लस डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। ये किसके इक्वल था आपके, दिस इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे हमने b ऑफ सिस्टम किसके इक्वल था, b ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम के, b ऑफ सिस्टम t प्लस डेल्टा टी किसके इक्वल था, दिस माइनस दिस प्लस दिस। नाउ टेकिंग लिमिट dt टेंड्स टू 0। अगर हम लिमिट dt टेंड्स टू 0 कहते हैं तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा सिस्टम एंड वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम वॉल्यूम में है। क्यों, क्योंकि टाइम dt 0 बोल दिया तो मैंने इनिशियल टाइम बोल दिया। इनिशियल टाइम में क्या था हमारा, सिस्टम एंड द कंट्रोल वॉल्यूम दोनों क्या थे, ओवरलैप थे। इसके लिए सिस्टम एंड द वॉल्यूम बोथ आर इन द सेम वॉल्यूम, फाइन। सो वील अप्लाई लिमिट dt टेंड्स टू 0, क्लियर। फॉर दिस डेल्टा b of system upon dt equals to limit dt tends to 0, क्या आ जाएगा, पहले इसको लगा देंगे, b of control volume t plus dt माइनस b of control volume t upon dt माइनस लिमिट दे देते हैं इसको dt टेंड्स टू 0, इसको b ऑफ 1 t प्लस dt, फिर लगा देते हैं लिमिट इसको b ऑफ 2 t प्लस dt, लिमिट dt टेंड्स टू 0 अपॉन dt, ये भी हो जाएगा अपॉन dt, क्लियर। नाउ this
limit delta t tends to 0, delta of B system upon dt means limit delta t tends to 0, ये पूरा टर्म, this will become your d by dt of B system. Capital D by dt is nothing but it is called as a material derivative because we are moving with a Lagrangian approach. Clear? So we are taking which approach into picture? Lagrangian approach. So इसका limit and we will get what? D upon dt B of system. Same if you apply for this, you will get daba by daba t B of control volume. This is the material derivative, this is the partial derivative. Then minus, for this it will become your rho 1 A1 V1 into B1. Now what is this? How this value comes? किसके लिए? ये पार्ट के लिए. So what is B1? B क्या था एक्चुअली? B equals to mb. अपन नीचे क्या है? रेट ऑफ चेंज भी है, dt भी है. So this is what? मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट का वैल्यू क्या होता है? रो a b और b. तो रो 1 a1 v1 b1. So ये आपका आ गया in terms of this like this. Similarly plus for b2 will be rho 2 a2 v2 b2. Clear? Now we can write is that this is the change within system, this is the change what within the control volume. Now this term we can write this term as B in plus B out, this term, and this whole term will become what? Stuff that crosses the boundary. Clear? तो इसका आप सफल भी कर सकते हो. This equals to this plus B out minus B in. So this is the part 1 of the derivation of Reynolds transport theorem. Change within the system is equals to change within the control volume plus stuff that crosses the boundary. इसको अगर आपको change करना है, you can change it like this. ये B in plus B out था, you can write it down like plus B out minus B in. This is the stuff that crosses the boundary. Fine. Hope the derivation of the Reynolds transport theorem is clear to you. If you want to get clarified, see it twice or thrice. Till then wait so that we can move on with the better explanation of the B in and the B out concept. Till then, thank you.